आइए हमारे रिवायत का एक और हिस्सा किस्सा गोई, मुख्तसर किस्सा गोई। हमारे तमाम मौजूद शोरा तशरीफ ला चुके हैं, उनको ज़्यादा इंतज़ार कराना मैं सही नहीं समझता, इसलिए मुख्तसर किस्सा गोई के लिए जनाब जाहिद हुसैन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और किस्सा गोई पेश करें। मोहतरम जाहिद हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इससे पहले जो भाई साहब कसीदा गोई करने आए थे, उनको ये मालूम नहीं कि उन्होंने मेरी अनजाने में बहुत हौसला अफजाई कर ली है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी अदब से ज़्यादा जुड़ा हूँ, उर्दू अदब से कम। तो पहले अंग्रेज़ी पढ़ी मैंने और अब उर्दू की तरफ माइल हूँ, अब उर्दू की तरफ आना चाह रहा हूँ। और बहुत हद तक ये सिलसिला जो है ये फ़िक्र व फ़न के ज़रिए भी, और मेरे दोस्त जो हैं वहाँ पर मौजूद जिन्होंने ये तकरीब मुनक़िद की है उनकी वजह से भी, नियाज़ भाई, फ़िक्र व फ़न, रबीक शब्बीर। क्योंकि यहाँ पर कुछ तालिब इल्म ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पहले क़िस्सा गोई जब हम लोग करते हैं तो उससे पहले हम लोग दास्तान गोई करते हैं। क़िस्सा गोई के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए होता है, तो आज दास्तान गोई नहीं, क़िस्सा गोई सही। तो क़िस्सा गोई मैं करूँगा, लेकिन आज मुझसे एक दरख्वास्त की गई थी कि आप हिंदुस्तानी में क़िस्सा गोई तो करते ही हैं, एक बार आज अंग्रेज़ी में भी हो जाए। तो पहले एक अंग्रेज़ी कहानी करूँगा और उसके बाद हिंदुस्तानी कहानी पे पहुँचूँगा, जिसको हम लोग कहते हैं। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा, नियाज़ भाई से भी दरख्वास्त किया, वो तो अपने आदमी, उनको धमकी दूँगा कि दास्तान गोई भी जल्दी मुनक़्क़िद करवाएं। तो पहले सुनिए, ये कहानी है। इट इज़ कॉल्ड द बॉल्ड ट्विट लायन, यानी कि एक गंजा शेर, उसकी कहानी है ये। तो हर कहानी कैसे शुरू होती है अंग्रेज़ी में? वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे ही शुरू होती है, हमने पढ़ा है। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है, तो ये वंस अपॉन अ टाइम से नहीं शुरू होगी, ये शुरू होगी वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस अपॉन अ टाइम there lived a, हमेशा कोई शख्स होता है, लेकिन यहाँ पर once, twice and thrice upon a time there lived a jungle. It started at the bottom and went upwards till it reached the monkeys who had been waiting for the jungle to climb up so that they could invent the art of climbing down. Most trees were made of wood, and so were the rest of the trees, because all of them are somehow and somewhere made of wood. They never spoke to each other, not even on Fridays. This jungle grew very, very happily with all the irises, roses, grasses. And this jungle was always on time, mind you, like some people are always late, like the late Jawaharlal Nehru, late Allama Iqbal, but this jungle, mind you, it was always on time. The jungle became very, very popular, and with lots of powerful animals. The jungle was called the Bozoliga Dowser jungle. Some scientists, they tried to go there and create a world of plastic, but they could not find anything there, so they said, okay, let's go to the moon instead. There we'll find something worthwhile. But people and human beings, they came to the jungle to find petroleum, coal, gold, diamond, something which the animals knew how to live without. But this is not a sad, sad story. This is a story about a lion, as I had told you before. So what happened is, in this land called Congo land, a lion named Mr. Gronk had been given the key to the jungle. And what he did, he became so happy that he roared. And when he roared, alas, what happened? All his hair started falling off, one by one. Tinkle, tinkle, tonkle. That is the sound of his hair falling on the ground. And
And then what happened? He looked at his image in the Daily Mirror, which is not a newspaper, but the river flowing beneath the jungle. And he said, oh, I'm a bald twit lion without any hair. Oh, dearie me, I'll be the laughing stock of the hyenas. Hyenas laugh, by the way. A passing hippopotamus. He said, I am a passing hippopotamus, right? And he said he looks like a bald twit lion. But the lion, he became so angry at this hippopotamus, and he was about to roar again, but he stopped. This time, something else might fall off. And all he did was, whenever he got angry, he did this. But one day, the lion, he became very, very sad. And what do we do when we are sad? We cry, right? So he cried so much that he ran out of water. He had to drink 2 gallons of water, 1 for each eye. And he cried so much after that, again, for 40 days and 40 nights, that there were lakes in front of him. He cried so much. And to make matters worse, there were even ducks swimming on that lake. But God was watching. How could he let this happen? So, a tourist came by to the jungle and he saw this bald lion. He said, I've never seen a bald twit lion. Come on, this has to be the most amazing animal in the world. And soon, the lion became a tourist attraction. Everyone came to see him, and no one believed their wits. How can a bald twit lion be there? We've never seen a bald lion. Have you seen a bald twit lion? No, I don't think so. You've not seen it because there isn't any. So what happened is he became very, very famous. His bald head became so famous that he even became more famous than Mahatma Gandhi's bald head. But the lion was happy. Initial part, lion was happy that everyone was coming to see his bald head, but inside his heart, he was really sad because no one ever came to see him. But God was watching, as they say, Upar wala sab dekhta hai. I'm not referring to sub TV. So what God did, he slid down from a giraffe's neck, a religious giraffe, mind you. He slid down from a giraffe's neck and said, I am God Almighty. If you don't believe me, ask the giraffe. The giraffe said, oh yes, he is God Almighty. The lion said, if you don't believe, he said, I don't believe you. Then God said, if you don't believe me, ask me a difficult question. The lion said, how much is 2 into 2? God said, 4. Okay, I believe you, you are God. Okay, yeah. And then God did what he had to because he could not see the sad lion in that sad state. He said, okay, close your eyes and say, Mini Monkey Mickle. 100 times and your hair will grow back. The lion closed his eyes and did Mini Monkey Monko 100 times, and when he opened his eyes, God had gone home, but his hair had come back on his head. He became so happy that he married a Roman Catholic giraffe and lived happily ever after until the very next day. And this is the story written by Spike Milligan, who's a writer, and he writes satirical humor. अब जो है इसके बाद मैं अपनी किस्सा गोई पर आता हूँ, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है और ये नेम टैग भी दिया गया है। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मेरा नाम भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो कहानी है, इसमें हम लोग उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी थोड़ी फारसी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उर्दू की बज़्म में बैठा हूँ तो शायद चूक हो जाए, ज़रा उसके लिए माफ़ी पहले से। तो
तो ये जो है ये कहानी हम लोग चलयुग में लगाते हैं। आप लोगों ने चलयुग तो नहीं सुना होगा, कलयुग सुना होगा। चलयुग लोग कहते हैं कि कई भाई क्या नाम है ये चलयुग, आप लोगों से गलती हो रही है, आप लोग कलयुग कहना चाह रहे होंगे। हमने कहा नहीं, ये चलयुग है। चलयुग क्या है? जो चीज़ चल रहा है वो चलयुग है। तो हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसा करें। जैसे कि एक फिल्म आई थी अशोका, उसमें शाहरुख खान से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा है? हम लोगों ने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है ASHOKA, H नहीं है आपका, ASOKA है, बोले आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका जवाब ये था ताकि आप हमसे पूछ सकें कि हमने ऐसा क्यों किया, ताकि, तो ये जवाब था उनका। तो अब देखिए ये जो कहानी है अकबर के दरबार में शुरू होती है। अब कि अकबर के दरबार में तो आप जानते हैं 9 रत्न हुआ करते थे, नवरत्न कहते हैं हम लोग। और उनके दरबार में विष्णु पद भी खूब बजा करते थे, विष्णु पद। और इसी से ब्रज शायरी में और कृष्ण भक्ति में बहुत रूज आया और मौसीकी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये वो ज़माना था जब बादशाहों के खानकाहों में, दरगाहों में विष्णु पद बजा करते थे और वहीं से कृष्ण भक्ति का उरूज, जैसे मैंने आपको कहा है। तो तानसेन, इनका नाम सुना है आप लोगों ने, तानसेन? तो तानसेन जो है वहाँ पर सूरदास का एक विष्णु पद गा रहे थे और वो इस तरह था, ब्रज में कहते हैं कि बारे बारे यूं भांके जशुदा, बारे बारे यूं भांके, है कोई ब्रज में हितो हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। तो बादशाह को बड़ा पसंद आया ये कि भाई क्या खूब कहा है और ब्रज में कहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। भाई तानसेन इसके माने तो बताओ। तो तानसेन कहते हैं देखिए हुजूर, यहाँ पर जो है माँ यशोदा जो है कृष्ण की माँ, वो कृष्ण को जाने से रोकना चाहती है, तो इसीलिए बारे बारे यानी कि दोहरा दोहरा कर वो ये कह रही हैं कि कृष्ण रुक जाओ मेरे कृष्ण, कोई ब्रज में ऐसा इंसान है जो हमारे जाते हुए गोपाल को रोक सके। अकबर को बड़ा पसंद आया। अकबर तो आप जानते ही हैं, ही वॉज अ कनोजर ऑफ आर्ट। और साल्वाडोर दाली जैसे कहते हैं, जो मशहूर पेंटर थे, वो कहते हैं द कनोजर डज नॉट ड्रिंक वाइन, ही ओनली टेस्टेड सीक्रेट्स। तो अकबर भी का कुछ वैसा ही जवाब है अकबर का। तो अब वहाँ पर अकबर का नाम जब आया है तो अकबर से मुताल्लिक़ हम किसके नाम को ज़्यादा तलाशते हैं? उसके बाद अकबर के दरबार में कौन सा नवरत्न है जो सबसे ज़्यादा चमकता है? बीरबल। तो बीरबल से पूछा गया, भाई बीरबल ये बताओ कि ये जो इन्होंने कहा है बारे बारे यूं भागे शुदा, बारे बारे यूं भागे, है कोई ब्रज में हितो हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। तो वो कहते हैं हुजूर यहाँ पर मुझे लगता है बारे बारे जो इस्तेमाल किया है, वहाँ पर माँ यशोदा ये कहना चाह रही हैं कि द्वार द्वार जाकर वो कह रही हैं कि मेरे गोपाल को, मेरे नंदलाल को कोई रोकने के लिए है इस ब्रज नगरी में। तो अकबर जो मियाँ हैं उनको बड़ा पसंद आया। बोले वहाँ पर उन्होंने सुना दोहरा दोहरा कि यहाँ पर कह रही हैं ये द्वार द्वार जाके। अब एक और नवरत्न जो है उनके, वो आए मिर्ज़ा कोका, जो नजूमी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। तो उनसे पूछा गया भाई इस शेर के मानी बताओ। तो उन्होंने कहा हुजूर बारे बारे का मतलब जो है वो यहाँ पर ये होता है कि दिन और रात। तो दिन रात माँ यशोदा जो है वो ये कह रही हैं कि कोई हमारे जाते हुए गोपाल को, नंदलाल को, किशोर को रोक ले, कोई है ऐसा ब्रज में। तो अब वहाँ पर आ गए फैज़ी। तो अकबर ने कहा फैज़ी भाई तुम तो शायर हो, तुम इसकी मानी बताओ, क्या तुम्हारे नज़दीक से क्या माने? तो फैज़ी कहते हैं कि बारी बारी का मतलब हुजूर यहाँ पर है रो रो के। तो कहते हैं दारिना आब आस, यानी कि पानी है उसका मतलब, बारी बारी जो है उसका मतलब पानी है। तो यशोदा जो है बार बार कह रही है, रो रो के कह रही हैं कि है कोई ब्रज में हितो हमारो, जो जाते हुए गोपाल को रोक सके। अब उसी दरबार में अब्दुल रहीम खाना भी थे, वो मुस्कुरा रहे थे कोने में। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या माने समझते हैं इसके? तो वो कहते हैं हुजूर शरफुद्दीन यहिया मनेरी जो है उन्होंने कहा है कि कोई भी शेर है उसके मानी इस तरह होते हैं कि जैसे आईने के अंदर कोई अक्स, आईने के अंदर कोई सूरत नहीं होती, जो उसमें देखता है वो सूरत आईना हो जाता है। वैसे ही शेर का मामला है हुजूर, कि जैसे जिसका दिल वैसे ही शेर का मतलब वो समझता है।
तो आप देखिए जो तानसेन है ये तो राज गायक है, दिन भर तोम बॉम करके रियाज करते रहते हैं। उन्होंने कहा दोहरा दोहरा के। वो जो बीरबल हैं वो तो पुश्तैनी ब्राह्मण है, द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते हैं। उनके नजरिए से क्या हुआ? द्वार द्वार जाके। और वो जो मिर्जा कोका है, नजूमी है, उनका तो दिन रात का काम है सूरज चांद की गिनती रखना, तो उन्होंने कह दिया दिन रात। और जो फैजी हैं वो तो शायर हैं, रोने धोने से फुर्सत मिलती नहीं है उनको, तो उन्होंने कह दिया रोते रोते। तो अकबर ने कहा भाई तुम क्या समझे ये बताओ उसमें। तो अब वो तो अकबर बादशाह शुकन फहम थी, तो उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो ये बताओ। तो कहते हैं कि हुजूर किसी भी शेर के दूर के मानी होते हैं और एक नज़दीक के। दूर के मानी तो बस ध्वनि यानी कि साउंड से समझा जा सकता है, और नज़दीक के मानी को समझने के लिए शायर की अंदर, शायर के दिल के अंदर झांकना पड़ता है। उसका असली मरकज़ी ख्याल जो है शायर को जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर शेर भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो है सूरदास जो कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि उनका रोम रोम जो है वो गवाही दे रहा है कि कोई जाते हुए गोपाल को रोक सके। तो उनका मतलब यहाँ पर बारी बारी से यही है कि माँ यशोदा का रोम रोम ये पुकार कर कह रहा है कि है कोई ब्रज में तो हमारो जो जाते हुए गोपाल को रोक सके। और मैंने इस कहानी को इसलिए चुना आज की महफिल के लिए क्योंकि इसमें भी शेर का जिक्र है, और इसके बाद मेरे जाने के बाद फिर ये सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा, उसका अख्ताम होगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे शोरा आएंगे जो अपने कलाम सुनाएंगे, अच्छे में नवाजेंगे। तो उनके शेरों में भी वही तासीर होगी जो यहाँ सूरदास के शेर में है, सूरदास के इस कलाम में है। तो यहीं तक का मेरा वक्त था। तो इसके बाद आप लोगों के हवाले बहुत बहुत शुक्रिया। ये किस्सा गोई का एक छोटा सा नमूना था। अंग्रेज़ी में मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन अंग्रेज़ी में इस बार मुझसे कहा गया तो मैंने कर दिया कि चलिए एक बार थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम हमारे ही प्रोग्राम में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ फ़िक्र फन से, और आप लोग भी जुड़े हैं। तो यही कोशिश थी हम लोगों की कि थोड़ा सा और कुछ इंट्रोड्यूस किया जाए किसी चीज़ को, नए फ़न को। तो बहुत बहुत शुक्रिया।